Hey brilliant mind out there. I hope you are doing well. और अभी इस चैनल में of specifically to this session, we are going to learn about the Node.js fundamentals and the concepts behind the scenes, how it is working, and what are those important aspects to understand more when you are just going to write any code for the backend using Node.js framework or whatever the infrastructure related to it, right? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि JS क्या होता है. So what is JS? JS is another a language, right? Right? So JS exactly है क्या? So it is kind of a programming language, right? Where you are going to run directly into the browser and also used for the backend via Node.js, correct? अब ये कहाँ यूज हो सकता है? ये फ्रंट एंड में यूज होता है, बैकएंड, मोबाइल एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, फुल स्टैक एप्लीकेशंस, राइट? अब हम लोग स्पेसिफिकली वी आर जस्ट गोइंग टू टारगेट Node.js इन दिस सेशन ओनली. तो हम लोग Node.js के बारे में ही पढ़ेंगे, राइट? तो Node.js एग्जैक्टली काम कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट इट. सो Node.js let you run JavaScript outside the browser, right? अब आप ये देख रहे हो कि you have to build something to use any piece of code, right? So it should be non-blocking, right? तो जावास्क्रिप्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं, बहुत ही नटशेल में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? और जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड होने के साथ में क्या है? सिंक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, करेक्ट, राइट? एंड वट एवर द सिंक ऑपरेशन कैसे काम करेंगे? टॉप टू बॉटम, राइट? टॉप टू बॉटम, वन बाय वन लाइन रीड करके, वन बाय वन line line of code it will read and execute, correct? But अगर हमें asynchronous operations करने हैं, asynchronous operation means अगर आपको कोई API कॉल करनी है, you have to interact with any web API और outside calls that you need to perform, correct? कुछ डेटा लेके आना है आपको बैकएंड में, या बैकएंड से एग्जीक्यूट करना है, एक रिक्वेस्ट पे एग्जीक्यूट करना है, करेक्ट? तो async operations करने होंगे, ठीक है? async operations कहाँ होंगे? एप्स 100% Node.js पे होंगे, बिकॉज अब Node.js पे किस तरह से होंगे वो हम आगे देखेंगे, राइट? तो async operations करने के लिए we are going to utilize Node.js and, और ये क्या होता है? नॉन ब्लॉकिंग होता है, राइट? इसको आप कभी भी परफॉर्म कर सकते हो whenever user will be going to hit any request throughout the API, REST API that we have created in the backend. So non-blocking operations, non-blocking executions यहाँ पे होते हैं, करेक्ट? अब ये तो जस्ट एक थ्योरी है. आई मीन या दिस इज द वे दैट वी आर गोना परफॉर्म एनी ऑपरेशंस थ्रू आउट द नोड.जेएस. अब क्या होगा, राइट? तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ऑपरेशंस मिलके परफॉर्म कैसे होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे. तो इवेंट लूप इज बिगेस्ट हीरो इनटू द ऑपरेशन, राइट? ये इवेंट लूप में हमें हमारे पास कुछ like you know call stick first of all होता है. if you can see, I can, okay, ठीक है? तो एक कॉल स्टेक होता है, इट्स काइंड ऑफ अ कंटेनर. इफ यू कैन सी दिस कंटेनर, राइट? ठीक है, इसके अंदर सारे सिंक ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. दिस इज द पार्ट ऑफ अ Node.js. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी be very clear with you, this is just a part of the Node.js, right? Let me write it down here for you. Node.js का part है, right? And what else we have? We have memory heap, right? We will be going to connect the dots for sure. Don't worry about this. So memory heap होती है हमारे पास, right? So memory heap के साथ में we do have one more thing, correct? And this is not a link, but somehow it is working parallelly whenever the operations gonna be performed, right? मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है. यहाँ पे होता है garbage
garbage collection, right? The garbage collection क्या करता है, जो भी unused variables हैं or whatever the values that has been collected which we are not required anymore, it will be just throw out from the execution one it is executed or resolved, right? अब वो हम देखेंगे आगे कैसे काम करता है, right? देखो, अभी मेमोरी हीप में क्या होते हैं, छोटे छोटे चंक्स होते हैं, चंक्स ऑफ मेमोरी स्टेक्स वैल्यूज, राइट? मैं छोटा छोटा आपको बना के दिखा सकता हूँ, राइट? लेट मी नॉट दिस वन। देखो, वी हैव मल्टीपल छोटा छोटा चंक्स, राइट? These are not connected to each other, but yes, we'll be just going to store a value, right? Let me do it for you, right? यहाँ पे मेमोरी, अब क्या होता है, देखो, ये जो प्रोसेस है, दिस इज द सिंक्रोनस प्रोसेस, राइट? अब ये एग्जैक्टली क्या है, ये आपका जेएस V8 engine है, राइट? दिस इज योर जेएस V8 engine। अब जेएस V8 engine होता क्या है, ये आपका सिंक ऑपरेशन जितना भी होता है वो हैंडल करता है, राइट? गेट इट? सो अब ये दिस इज जस्ट अ सिंगल पार्ट ऑफ द इवेंट लूप ऑफ सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन। अब क्या होगा कि जब भी इवेंट एग्जीक्यूट होगा, इवेंट एग्जीक्यूट होने के बाद जो सिंक्रोनस ऑपरेशंस हैं, whatever the synchronous operation will be going to perform in this section, right? अब जैसे ही वेरिएबल या वेरिएबल आप बोल रहे हैं हम लोग, या फिर कोई वैल्यू असाइन होती है, तो वैल्यू असाइन होते से ही ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन क्रिएट हो जाता है आपके कॉल स्टैक में, राइट? लेट मी शो यू दैट। अब ठीक है, लेट मी शो यू दैट। अब ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हुआ, राइट? अब यहाँ पे डेटा आया, सिंक्रोनस ऑपरेशन आया, देन एग्जीक्यूट होके, देन आफ्टरवर्ड्स वंस इट इज एग्जीक्यूटेड इट विल बी गोइंग टू एम्प्टी, एंड फिर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी हट जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फंक्शन है, वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, राइट? तो फंक्शन के साथ में उसका फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी बनता है आफ्टर क्रिएटिंग द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। फिर यहाँ पे वो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जो कि सिंक है, और फिर वो जैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं, सो इट विल बी गोइंग टू अगेन एम्प्टी फॉर हैपनिंग द नेक्स्ट ऑपरेशन, करेक्ट? और पैरेलली सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वेरिएबल असाइन हुआ है वो वेरिएबल यहाँ पे आके स्टोर होता है, उसकी मेमोरी अलोकेट होती है। मेमोरी allocation के बाद it will go to this call stack container, then call stack container has its own GEC, if it is function or any method it will be going to create a functional execution context, then afterwards it will be going to execute whatever the synchronous operations we have। so यहाँ पे होने के बाद then it will be going to vanish out everything, and garbage collection do it do its works parallelly, correct? राइट? सो अब ये तो आपका जे स्वीट इंजन पे काम हुआ, राइट? सो अब क्या होता है कि अब आपको, ठीक है, अब मेमोरी हीप ने अपना काम कर लिया, गार्बेज कलेक्शन ने अपना काम कर दिया, कॉलस्टिक ने अपना काम कर दिया, बट जेस क्या है, जेस डजंट हैव टाइम कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। if you I mean if you say, for example, you need to do API calls after 5 seconds, it cannot do it by itself। इट्स अ ड्रॉबैक, और कुछ भी बोल सकते हो उसको, कॉन्स बोल सकते हो, राइट? इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? तो एक काम करते हैं, पैरेलली वी कैन बी एबल टू क्रिएट अ नोशन फाइल फॉर दिस टू गेट द नोट्स। तो नोट्स भी बनाते हुए चलते हैं हम लोग, राइट? आई शो यू दैट वन मोर थिंग, राइट? हम लोग ना नोट्स बनाते हुए चलते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
ओके सेक um, मेरे ख्याल से ये सेशन काफी है देन नेक्स्ट सेशन में वी विल बी गोइंग टू कवर अनदर थिंग सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप हमारे पास Node.js है Node.js is a synchronous operation non-blocking and event driven IO based architecture framework and जो JS है वो single threaded है यहाँ पे synchronous operations होते हैं and it will be going to read each and every file one by one right और asynchronous operation this is a parallel operation happens in the Node.js और Node.js के अंदर जावास्क्रिप्ट V8 इंजन होता है V8 इंजन which is compatible with performing any operation at browser राइट और इसमें मेमोरी हीप होती है गार्बेज कलेक्शन होता है कॉल स्टैक होता है राइट वेन आपका जब भी आप वेरिएबल में कोई वैल्यू पुट करते हो उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो यहाँ पे मेमोरी में अलोकेट होता है देन उसके बाद इट विल गो टू दी call stack or immediately call stack will be going to create a global execution context then अगर फंक्शनल मेथड है तो फंक्शन मेथड उसके लिए फंक्शनल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट रेडी होता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है जो भी परफॉर्म करना है ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो जाता है वैल्यू रिटर्न हो जाती है देन उसके बाद कॉल स्टैक गोना बी एम्प्टी एंड एवरीथिंग गोज पॉप ऑफ राइट ओके नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एपिसोड या सेशन में हम लोग देखेंगे कि सेट टाइम आउट क्या होता है वेब वेब एपीआईज कैसे काम करती हैं हाउ एक्चुअली Node.js architectures works with the OS because OS के पास सारी फाइल्स हैं डेटाबेस है whatever the timers we have to interact with हम लोग फिर वो चीज़ें भी देखते हैं alright thank you so much for watching